Hello guys, now it's time to you to invest in a very good things like life insurance. Yeah, we have already discussed what is insurance in simple words. Now it's time to come on the topic of life insurance, which is the most important part of everyone's life. So let's go. What is life insurance? Let's discuss it in a very simple meaning. Okay, so here we go. Life insurance is a type of contract. Okay, I add legal contract. Okay, you make with an insurance company. So you pay a certain amount of money, which is called a premium, and in return the insurance company promises to pay a sum of money, sum of money to your family or loved ones when you pass away or when you died. Okay, this money can be used to help them pay for things like funeral cost, bills and other expenses, so on. Okay, they may have. So it's a way to provide financial protection for your loved ones in case something unexpected happens to you. So how life insurance works? Let's go and discuss it. First of all, life insurance works by providing financial protection to your beneficiaries like your son, like your family members, anyone of, in the event of your death. So if you pass away, your whole amount, the lump sum amount will be paid to your loved ones. So here is how typically works. So first of all, let's discuss it one by one step. First, you purchase a life insurance policy from an insurance company. So you will need to choose the type of the policy you want, the amount of the coverage you need, and the length of the time, during of the time you want to be covered, known as the term of the policy. So it is known as the term of policy. The second step, you pay premiums. यानी मीन्स मतलब ये है कि तुम प्रीमियम्स यानी कि अमाउंट यानी कि पैसे देते हो किसको? इंश्योरेंस कंपनी को. सो इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस भी हो सकता है, ये क्वार्टरली बेसिस भी हो सकता है और ये ईयरली बेसिस भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आप पॉलिसी जब लोगे तो उस दौरान आप चेक कर सकते हो कि आप कैसे कंफर्टेबल हो पे करने के लिए. सो टू कीप द पॉलिसी इन फोर्स. द थर्ड स्टेप इज इफ यू पास अवे, अगर तुम मर जाते हो वाइल द पॉलिसी इज इन फोर्स, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे आ डेथ बेनिफिट. इसका मतलब यह है कि अगर तुम मर जाते हो किस दौरान, पॉलिसी की जो टर्म है, मतलब जितना तुमने अपना कवर करवाया. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 80 साल तक का कवर लिया है, कवर का मतलब मैं चाहता हूं कि 80 साल तक मैं कवर रहूं, मतलब मेरे ऊपर एक छाया बनी रहे कि अगर इस दौरान मैं मरा तो मेरा पूरा अमाउंट जो है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा या फिर उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसको भी, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो क्या होता है, दिस मनी कैन बी यूज टू कवर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, सो ऑन. यार वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आप ये खर्च कर सकते हो. वैसे ऐसा होता नहीं है, जो भी माँ बाप अपने ये लेते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली, तो वो ये सोच के लेते हैं कि ताकि आने वाले वक्त में जब हम नहीं रहें तो हमारे बच्चे या हमारे बच्चों के बच्चे जो भी हैं वो एक्चुअल में फाइनेंशियल लॉसेस से सफ़र ना करें. So this money can be used to cover funeral expenses, pay off debts, providing ongoing income to your family, or fulfill any other financial needs to your beneficiaries may have. So the most important thing, what I should know or what I should carefully look before buying any life insurance. तो हमें लाइफ इंश्योरेंस बाय करने से पहले ऐसी क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए. So here we go. Before buying life insurance, it's important to carefully review the policy, the term, to ensure that it meets your need and provide adequate coverage. Here are some key things to look for in life insurance policy. So here we go. First of all, type of policy. There are
two main types of life insurance policies: term life and permanent life. Okay, term life insurance provide coverage for a specific period of time like 20, 30, 40 age, while permanent life insurance provides coverage for the policy holder's entire lifetime. It's important to understand the difference between these types of policies and choose the one that is right for you. तो इसके लिए आप अगर चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेते हैं। टर्म लाइफ कहूँ या टर्म इंश्योरेंस, एक ही बात है एक तरीके से। तो सेकंड वन पे आते हैं। Second one, coverage amount. The amount of coverage you will need, okay, will depend on your individual circumstances and the financial goals. Consider factors such as your income or debts and future expenses when determine how much coverage to purchase. भाई कितना तुम कवरेज लेना चाहते हो, मतलब अगर तुम मर गए तो कितना अमाउंट जो है कंपनी तुम्हें पे करे, ये तुम डिसाइड करो कि 1 करोड़ लेना चाहते हो या 2 करोड़ या फिर 50 लाख ही सही रहेगा। लेकिन जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना तो ऑलरेडी वो रिकमेंड भी करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो गाइड नहीं करेंगे। आप कॉल कर सकते हो उन लोगों को, ठीक है, जिस भी वेबसाइट पे आप जाओगे। ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन लो। ऑफलाइन लेते हो तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे क्योंकि एजेंट आपको देगा वो पॉलिसी। अगर ऑनलाइन लेते हो तो इतने पैसे खर्च नहीं होंगे, वो एक्चुअल प्राइस होगा ऑफ द पॉलिसी का। The third one is premiums. Premiums are the amount you pay for your life insurance policy. Make sure you understand the cost of the policy and how premiums may change over time. और ये भी याद रखना कि प्रीमियम्स चेंज भी होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करना, अच्छे से टर्म्स पढ़ना उसकी, और डाउट जो भी हो वो आप एजेंट से पूछोगे या फिर अगर ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो ऑनलाइन में भी वेबसाइट पे आप जाकर पढ़ सकते हो या फिर कॉल के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। So the fourth one, policy riders. Okay, riders are just like a add-on benefits. राइडर कुछ ऐसी हवा ववा नहीं है, बस राइडर का मतलब होता है, ये एक टर्म है इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग। राइडर का मतलब होता है एड ऑन बेनिफिट्स, यानी कि आप बेनिफिट्स यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को भी ऐड करा सकते हो, लेकिन उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। देयर इज नथिंग टू फ्री। ओके, सो पॉलिसी राइडर्स आर एडिशनल फीचर्स और बेनिफिट्स दैट कैन बी एडेड टू योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एग्जाम्पल, द पॉलिसी राइडर्स इंक्लूड एक्सीडेंटल डेथ, okay, accidental death coverage, waiver of the premium, and so on, accelerated death benefits. So review any available riders and determine whether they are worth adding to your policy or not. तो राइडर ऐड करने से पहले देख लेना कि उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। द फिफ्थ वन इज एक्सक्लूजन एंड लिमिटेशंस. रीड द पॉलिसी केयरफुली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सक्लूजन्स और लिमिटेशंस ऑन कवरेज. फॉर एग्जाम्पल, सम पॉलिसीज में नॉट कवर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सर्टन एक्टिविटीज़ एंड प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन. तो अच्छे से मैंने जैसा कि पहले भी बोला, रीड केयरफुली, वॉच केयरफुली योर पॉलिसी वॉट एवर यू आर गोइंग टू टेक, और अच्छे से समझो पॉलिसी को तभी परचेज करो. एंड द सिक्स वन इज प्रीमियम्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्रीमियम्स आर द अमाउंट दैट यू पे. ओके, एंड द अदर वन conversion options. What is this? Let's discuss it. So if you choose a term life insurance policy, look for one that includes a conversion option. This allows you to convert your policy to a permanent policy without undergoing additional underwriting. तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. देखो भाई, लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है. एज यू नो ऑलरेडी व्हाट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है, एक्चुअल में इंश्योरेंस नहीं कहूँगा इसको, ये एक इन्वेस्टमेंट है. बिकॉज एवरी वन इज़ गोइंग टू डाई. सबको पता है कि हम सब मरने जा रहे हैं, और आजकल कंपनी क्या कर रही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एज को मॉडिफाई भी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे. मतलब आपको भी पता है 60 साल से 70 साल तक ही आजकल इंसान जी रहा है ओवरऑल, अगर ज़्यादातर मैं कहूँ तो. ठीक है, 100 में से सिर्फ 5% 4% ही लोग ऐसे हो जाए जो 80 से 95 तक जी पाते हैं. तो अब कंपनी ने 80 साल तक लिमिट रख दी है. 80 साल तक आप कवर रहोगे. यू विल बी कवर्ड ड्यूरिंग द 80 ईयर्स.
and you need to pay only on during the 57 years of your age or 60 years of your age. So here are most of the benefits. Life insurance can provide a number of benefits for both the policyholder and the beneficiaries. Here are some of the main benefits of the life insurance. First of all, provide financial security for your loved ones, okay, and you also included. So provide second, okay, provide peace of mind. You are free from all the burden that what will be happen after my death. So peace of mind. And the third one, can be used in an investment. As I've already told you, it is an also investment. And the fourth one is offer tax benefits. Offer tax benefits a lot, okay, 80cc के अकॉर्डिंग, ओके, 80cc सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आराम से आप सभी लोगों को बेनिफिट्स मिल जाएंगे देखने को, ठीक है. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस कैन बी वैल्यूएबल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारे लिए. अगर हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं मरने के बाद, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं मरने से पहले कि हमने अपने आप को कवर कर लिया, आप चाहे हम मर भी जाएं, हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप, अगर हम मर भी गए तो हमारे माँ बाप को अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, जिससे कम से कम उनकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, बच्चों की तो लाइफ अच्छी हो जाएगी ना. This is overall life insurance can be valuable tool for providing financial security and peace of mind to you and your loved ones. So thank you very much for watching our video. Must like, subscribe our channel if you watch our video continuously.